Hello everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. From today's session we are going to start with the new topic, that is number system. So let us start the session. So first we'll learn about the classification of numbers. So numbers are basically classified into two main types, real numbers and imaginary numbers. The real numbers are further classified as rational numbers and irrational numbers. These rational numbers are further categorized into three main types, natural numbers, whole numbers and integers. And all the natural numbers include even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers and co-prime numbers. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स की डेफिनेशन देखना है. So first we'll talk about natural numbers. So what are natural numbers? Natural numbers are the counting numbers जिसे हम count कर सकते हैं, and these numbers are denoted by capital N. तो which are the counting numbers? 1, 2, 3 and so on. All these are natural numbers. Next are whole numbers. So what are whole numbers? The collection of natural numbers along with 0 is the collection of whole numbers, and whole numbers are denoted by capital W. तो whole numbers कौन कौन से हो जाएंगे? Natural numbers कौन से है? 1, 2, 3 and so on. अब उसमें क्या ऐड करना है? 0. So 0, 1, 2, 3 and so on are all whole numbers. Next are integers. So what are integers? The collection of natural numbers, their negatives along with the number 0 are called as integers, and these integers are denoted by the letter capital Z, and integers are 1, 2, 3, their negatives -1, -2, -3 and so on along with the number 0. All these are integers, correct? Next, even numbers. So numbers which are divisible by 2 are called as even numbers. So which are the even numbers? 2, 4, 6, 8 and so on. वैसे ही odd numbers, numbers which are not divisible by 2 are called as odd numbers. 1, 3, 5 and so on. All these are odd numbers. Next are prime numbers. So what are prime numbers? Numbers which are divisible by itself and 1. That is, these numbers have only two factors. That is, the number itself and 1 are called as prime numbers. तो ऐसे कौन कौन से numbers है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. All these are prime numbers because they have only two factors, that is the number itself and 1. Correct? यहाँ पर आपको एक important point note करना है. 2 is the only even prime number. Even prime number कौन सा है? सिर्फ 2. ठीक है? Next are composite numbers. So composite numbers are the numbers which have more than 2 factors. जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर है उसे कहते हैं हम composite numbers. So which are the composite numbers? 4, 6, 8 and so on. अगर आप नंबर देखोगे 4, तो 4 को कौन कौन से फैक्टर्स है? 1, 2, 4. इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है. वैसे ही अगर आप नंबर देखोगे 6, तो 6 को कौन कौन से फैक्टर्स है? 1, 2, 3 एंड 6. इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है. वैसे ही अगर आप नंबर देखोगे 8, तो 8 को कौन कौन से फैक्टर्स है? 1, 2, 4, 8. करेक्ट? तो यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है. इसका मतलब ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक है? और यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. ठीक है? नेक्स्ट, co-prime numbers. So what are co-prime numbers? If the highest common factor of two numbers is 1, then the two numbers are called relatively prime or co-primes. अब यहाँ पर co-prime numbers मतलब क्या है? Numbers का पेयर है, राइट? जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे पहला पेयर, तो वो क्या है? 2 और 3. तो 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1. Therefore they form co-prime numbers. उसके बाद 5, 7
दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1, सो दे फॉर्म को प्राइम नंबर्स। 17, 19 इन दोनों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1, सो दे फॉर्म को प्राइम नंबर्स। समझ में आ गया है? Next type of numbers are rational numbers. So what are rational numbers? Rational numbers are the numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Correct? So what are rational numbers which can be written in the form of p by q, where this p and q both are integers and q is not equal to 0. अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो 1/2, -4/3, 1, -4, 0 एंड सो ऑन। अगर आप पहला एग्जाम्पल देखोगे तो ये p by q के फॉर्म में है, करेक्ट, एंड बोथ p एंड q आर इंटीजर्स। -4/3 भी देखोगे तो p by q के फॉर्म में है एंड बोथ p एंड q आर इंटीजर्स। 1 देखोगे तो ये p by q के फॉर्म में है क्या? यस, बिकॉज 1 कैन बी रिटन एज 1/1, करेक्ट। -4 can be written as -4/1, it is also in the form of p by q. उसके बाद 0 can be written in the form of p by q. कैसे? 0 can be written as 0/1, right? Therefore it is also a rational number. समझ में आ गया ये? Next, irrational numbers. The numbers which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, is known as irrational numbers. ऐसे numbers which cannot be written in the form of p by q are called as irrational numbers. अब यहाँ पर आप examples देख सकते हो, √2, √3, pi and so on. अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 13, ऑल दीज आर irrational numbers, correct? Next, real numbers. Real numbers are combination of rational and irrational numbers. Simple. उसके बाद है imaginary numbers. अब क्लास 10 तक आपको real numbers के बारे में ही पढ़ना है। ये जो imaginary numbers है वो आप क्लास 11th में जाने के बाद पढ़ोगे इन द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन दे रहा हूँ। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ आयोटा आर कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर्स, where this value of iota is square root of -1. So 5 iota, 7 iota, -4 iota, all these are imaginary numbers. समझ में आ गया ये? अभी तक हमने जो भी सीखा है उस पे बेस्ड अप कुछ क्वेश्चंस देखना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं क्या? यस, बिकॉज वी नो दैट whole numbers are nothing but the collection of natural numbers along with 0, right? So every natural number is a whole number, correct? So the given statement is true. आप यहाँ पर justification भी देख सकते हो, 1, 2, 3, 4 so on are natural numbers as well as whole numbers. So the given statement is true. उसके बाद है every integer is a whole number. सारे integers whole numbers होते हैं क्या? नहीं। -1, -2, -3, -4, all these are integers but they are not whole numbers, correct? उसके बाद every rational number is a whole number. सारे rational numbers whole number होते हैं क्या? If we consider 1/2, -3/4, -2/3, all these are rational numbers but they are not whole numbers, correct? So the given statement is false, correct? Next, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या? नहीं, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट? 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं क्या? यस, बिकॉज every integer can be written in the form of p by q. Therefore, the given statement is true, right? Next, every rational number is an integer. सारे rational numbers integers होते हैं क्या?
नहीं, because if we consider 5 by 7, minus 2 by 3, 1 by 2, all these are rational numbers but these are not integers. करेक्ट. आप यहां पर स्क्रीन पर जस्टिफिकेशन भी देख सकते हो. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. समझ में आ गया है यहां तक. नेक्स्ट, एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. अब सारे इरैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं क्या? यस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द रियल नंबर्स एज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल. करेक्ट. सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. Real numbers are combination of rational and irrational numbers, so the given statement is true, right? Next, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? अब नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर्स है? इंटीजर्स के फॉर्म में देखोगे तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और उसके बाद -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. तो अगर आप -1, -2, -3, -4 ये सारे नंबर्स देखोगे तो कैन दिस बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट m? नो. करेक्ट. Negative numbers like -1, -2 and so on cannot be written in the form of root m, where m is a natural number. So the given statement is false. समझ में आ गया? ये जो नंबर लाइन पे निगेटिव इंटीजर्स है वो इंटीजर्स हम रूट m के फॉर्म में नहीं लिख सकते. करेक्ट. Therefore the given statement is false. करेक्ट. समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर. सारे रियल नंबर्स इरैशनल नंबर्स होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कुछ रियल नंबर्स रैशनल भी होते हैं. राइट. 1 by 2, -5 by 7, all these are real numbers but these are not irrational numbers. So the given statement is false. करेक्ट. क्योंकि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल. कुछ नंबर्स रैशनल होते हैं, कुछ नंबर्स इरैशनल होते हैं. तो वी कैनॉट से दैट एवरी रियल नंबर इज अ इरैशनल नंबर. करेक्ट. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. अब ये हमने रैशनल नंबर्स के डेफिनेशन में ही देखा है. 0 रैशनल नंबर है क्या? यस. 0 is a rational number because it can be written in the form of p by q. Correct. 0 can be written as 0 by 1, मतलब it can be written in the form of p by q. Correct. यहाँ पर आप जस्टिफिकेशन भी देख सकते हो. Yes, 0 is a rational number because 0 can be written as 0 by 1, 0 by 2 and so on. That is, it can be written in the form of p by q. Correct. समझ में आ गया? ये easy question है. Next, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. हमें क्या करना है? 1 and 2 में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है. तो ये फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. तो हम 1 को क्या कर सकते हैं? इफ वी मल्टीप्लाई 1 by 10 एंड डिवाइड इट बाय 10, तो नंबर क्या हो जाएगा? 10 by 10. करेक्ट. 1 को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं. करेक्ट. तो नंबर क्या हो जाएगा? 10 by 10. वैसे ही 2 को भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज 10 by 10. तो नंबर क्या हो जाएगा? 20 by 10. अब 10 by 10 और 20 by 10 में इजीली हम 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं. विच आर द 5 रैशनल नंबर्स? 11 by 10, 12 by 10, 13 by 10, 14 by 10, 15 by 10. So these are the 5 rational numbers between 1 and 2. क्या किया है मैंने? बस गिवन नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. ठीक है. जनरली हम लोग 10 लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना इजी है. अगर नंबर्स ज़्यादा चाहिए हमें तो 100 ले लेते हैं. ठीक है. समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? मैंने क्या किया है? गिवन नंबर है 1 और 2, तो 1 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, वैसे ही 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. तो मुझे दो नंबर्स मिल रहे हैं 10 by 10 एंड 20 by 10. तो इन दोनों के बीच में हम 5 रैशनल नंबर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. विच आर द नंबर्स? 11 by 10, 12 by 10, 13 by 10, 14 by 10, 15 by 10 and so on up to 19 upon 10. Right? Next, find 6 rational numbers between 3 and 4.
अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है वैसे ही करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो जनरली हम सिलेक्ट करते हैं 10 क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना इजी है, करेक्ट। तो इफ वी कंसिडर द नंबर 3 और 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो नंबर क्या हो जाएगा 30/10। वैसे ही 4 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो नंबर क्या हो जाएगा 40/10, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में के 6 रैशनल नंबर्स आप इजीली बता सकते हो। कौन से 6 रैशनल नंबर्स आ सकते हैं? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 एंड सो ऑन अप टू 39/10, राइट। इनमें से कोई भी 6 रैशनल नंबर्स आप ले सकते हो। मैंने स्क्रीन पर आपको 6 रैशनल नंबर्स बता दिए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहां पर भी वही करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मैंने कर लिया है 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हो जाएगा 30/50। वैसे ही 4/5 को भी वही करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, तो नंबर आ जाएगा 40/50, करेक्ट। तो 30/50 और 40/50 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, करेक्ट। समझ में आ रहा है? ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स इरैशनल होते हैं क्या? नहीं, राइट। बिकॉज इफ वी कंसिडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो आंसर कितना आएगा? 2, और 2 क्या है? इट इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। सो द आंसर इज नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट irrational, because if we consider an example, square root of 4 is 2 and 2 is a rational number. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।